So I'll make it again. There's a difference between this supply curve. There's a difference between this supply curve. This supply curve is elastic. इसको लिख रहा हूं S elastic. इसको लिख रहा हूं S inelastic. दोनों जगहों पे इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम के अंदर. दोनों जगहों पे रिस्पॉन्स जो होगा वो अलग होगा. रिस्पॉन्स अलग होगा. फॉर इंस्टेंस अगर मैं प्राइस को इंक्रीज करूंगा, look at this. If I increase the price from P1 to P2, the quantity supplied will actually end up increasing from Q1 to Q2 to this extent. If the supply on an elastic supply curve, let's say this is firm A having an elastic and this is firm B having an inelastic supply curve. Now look at the output change output change of firm B. Firm B का response check करो. ये firm B का पुराना output है. Look guys, look at this. ये firm B का पुराना output है. Look at the new output of firm B. It is changing. It ends up increasing, but it increases, relatively less. In fact, it increases insignificant increase आ रहा है. Such a हालांकि same price है. दोनों firms की को same price का increase face करना पड़ रहा है because obviously that's the market price. So the market price is rising for both the firms, but a firm that has an elastic supply is able to respond very quickly and able to produce more output as compared to firm that has an inelastic supply. You can also show this on the same diagram, but the diagram should be very clear and a बड़ा सा आपको diagram बना के दिखा सकते हैं. This is a good diagram that you can show that a firm. This is representing a firm with an elastic supply, and this is representing a firm that has an inelastic supply. Anyways. वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. किस तरीके से, बहुत गौर करना है कि मैंने आपको किस तरीके से लिखा हुआ है. बिफोर आई मूव ऑन, आई हैव रिटन दैट इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बिजनेसेस. इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बिजनेसेस. यानी देखो, इंग्लिश पे भी फोकस किया करो. मैं किस अंदाज से लिख रहा हूँ. कुछ वर्ड्स होते हैं बड़े कॉमन होते हैं इकोनॉमिक्स में, उस अंदाज से लिखना शुरू कर दो. लर्न करना शुरू कर दो. उनके देखें, मैंने ये नहीं लिखा हुआ कि यही होना चाहिए या ये करना चाहिए. ये नहीं लिखा मैंने क्या लिखा है शावेज? इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट. उनके अपने बेहतरीन मफाद में होगा टू कीप सप्लाई एज इलास्टिक एज पॉसिबल. मैंने ये नहीं बोला कि सप्लाई शुड ऑलवेज बी एज इलास्टिक एज पॉसिबल. मैंने कहा उनके अपने बेहतरीन मफाद में होगा. ये जजमेंट फॉर्म कर रहा हूं ना मैं, फतवे नहीं दे रहा, जजमेंट फॉर्म कर रहा हूं. जजमेंट में और फतवे में फर्क है. क्लियर? So it is in the best interest of the business to keep supply as elastic as possible. This means that when demand, ये देखो, ये दी मैंने नॉलेज दी. अच्छा ठीक है, सप्लाई को इलास्टिक रखा जाए. अब आई उसकी एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस. दिस मीन्स दैट व्हेन डिमांड एंड दस द प्राइस इन द मार्केट इंक्रीज. अगर कल को डिमांड बढ़ जाती है और उसके रिस्पॉन्स में आपको पता है कि इक्विलिब्रियम में हम पढ़ चुके हैं, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस प्राइस इंक्रीजेस, राइट? सो अगर डिमांड इंक्रीज होती है और उसके रिस्पॉन्स में हम देखते हैं कि प्राइस भी इंक्रीज होती है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द बिजनेसेस कैन businesses respond कर सकेंगे by supplying more to increase their profits. If the business wants to increase their profits, they can, so basically if they want to have more revenues and profits, what is going to happen? If they will be easily able to respond more to an increase in output, then yes, their profits का, actually मैंने यहाँ पे profits लिखा हुआ है, but profits से ज़्यादा important word that I should have written is what? Respond by supplying more. क्या लिखा होता मैंने? To increase total revenues. Profit का word मैंने क्यों हटाया यहाँ से? Anyone? Profit का word इसलिए मैंने हटाया because profit, you really can't have you really can't comment on the profit unless you don't know the cost, right? So, but yes, total revenue will definitely increase. Understood? So one more. उसके बाद बिलाल ऑन द बोर्ड, वन मोर, व्हेन डिमांड एंड दस प्राइस फॉल. अगर कल को प्राइस गिर जाती है, अगर डिमांड गिर जाती है, तो अगर कल को बिजनेसेस की डिमांड भी गिर जाती है, अगर मैं ना अब ये यूट्यूब पे जब डालूंगा ना, तो मैं लिख दूंगा, इफ यू गाइज आर रियली इंटरेस्टेड इन विजिटिंग शावेज प्रोफाइल, तो मैं तुम्हारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल की लिंक डाल दूंगा. अब हमारे कोई शावेज सुन रहा है तो बोलेंगे ना, कौन है भाई शावेज? हमारे फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे इससे. एक्सटर्नल बेनिफिट. Anyways,
वन मोर व्हेन, तो मैं बात ये कर रहा था कि अगर कल को प्राइस गिर गई मार्केट में, मेंगल प्राइसेस गिर जाती हैं तो क्या होगा, बिजनेसेस कैन रिस्पॉन्ड बाय रिड्यूसिंग आउटपुट। वो अपना आउटपुट दे, हाउ विल दे रिस्पॉन्ड, दे रिड्यूस द आउटपुट in order to protect against possible losses in order to protect against possible losses in terms of total revenue का loss। टोटल रेवेन्यूज जो होंगे ना बिजनेसेस, जो कि देखें होगा क्या, मिसाल के तौर पे बात सारी इतनी है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कल को डिमांड जो है वो डिमांड गिर जाती है, प्राइस गिर जाती है। एक प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड गिर रही है, उसकी प्राइस गिर रही है, तो what should firms do? Firms should reduce quantity supplied. Why? Because the demand is less. अगर कल को हमें मालूम है, देखें फॉर एग्जाम्पल ये डिमांड है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है, ये प्राइस है P1। अगर प्राइस गिर जाती है, if it falls to P2, if initially the demand was 100 on the board सारा, the supply was 100, let's say if the price falls, so first let's say the demand falls, let's say the demand curve shifts to the left। अगर demand fall हो जाती है, if this was demand, this was supply, if demand falls to D1 and let's say you were supplying 100 units and demanding 100 units, and now what happens is basically the demand falls and you end up demanding only 60 units, right? Sorry, I should write 60 here। You end up demanding 60 units, but the supply is 100, right? वही जो हम पहले भी देख चुके हैं, वो प्राइस मैकेनिज्म। 60 यूनिट्स जो है वो आप डिमांड कर रहे हैं, तो कितने का सरप्लस आ रहा है, 40 यूनिट्स का सरप्लस आ रहा है। बिजनेस को ये बात सपोज करें पहले से मालूम थी कि ये होने वाला है अगले 10 दिन में, लेकिन बिजनेस इनइलास्टिक है, सप्लाई उसकी इनइलास्टिक है, वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। Reducing output is not that possible at such a short period of time for this particular business. Maybe the factors of production are immobile. So there are a lot of, so again, or the business might not have predicted it well. There are a lot of reasons that this can happen. But what will happen to 40 units का क्या होगा, 40 units का क्या होगा, 40 units का surplus हो जाएगा। अब ये surplus, let's assume कि ये बिक नहीं रहा, right? And the firm has incurred a cost, so there's a risk of potential loss, right? So again, what I'm trying to say is that the business, the more elastic the supply is, the quicker it can respond, and the more flexible and sensitive the business's output will be. हम क्या बात कर रहे थे, हाँ हम बात ये कर रहे थे कि अगर सप्लाई आपकी इलास्टिक होगी तो प्रोड्यूसर सरप्लस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी। जितनी ज्यादा सप्लाई इलास्टिक होगी, एक चीज, अच्छा बस हमने एक चीज पढ़ी थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, वेरी गुड, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो इंक्रीज होती है, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज, और जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होती है तो प्रोड्यूसर सरप्लस, हमको पता है द रेट एट विच प्रोड्यूस सरप्लस इज राइजिंग फॉल्स। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है मेरा, जब सप्लाई इलास्टिक होगी तो मार्जिनल कॉस्ट में इंक्रीज लेस होगा, यानी इंक्रीज तो होगी लेकिन कम से होगी, कम से होगी। मार्जिनल कॉस्ट जब इंक्रीज होगी तो वो कम से होगी। जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कम से होगी तो P इक्वल्स टू MC वाला जो रूल था, याद है? P इक्वल्स टू MC वाला रूल, P इक्वल्स टू MC will be at higher units of output। क्या मतलब सर? इसका सिंपल मतलब है कमिंग, याद है हम टेबल पे वापस आते हैं, व्हाट वाज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब था, इधर देखो, इधर मैं एक प्रोडक्ट को, इधर देखो मैं एक प्रोडक्ट को लेट्स सपोज 6 यूनिट्स के अंदर, सॉरी $6 में प्रोड्यूस करता हूं, तो मिनिमम मैं कितना चार्ज करूंगा? हाउ मच इज द मिनिमम आई विल चार्ज फॉर दिस प्रोडक्ट? नो 6 मैं चार्ज करूंगा ना, प्रोड्यूस अगर 6 में कर रहा हूं जोया तो मैं चार्ज भी 6 ही करूंगा, लेकिन मार्केट मुझे 10 दे रही है, मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस 4 है, सही है जी। अगला यूनिट जो है वो, सेकंड यूनिट जो है वो 7 में बन रहा है, तो मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस 5 है। तीसरा यूनिट जो है वो 8 में बन रहा है, मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो थर्ड यूनिट पे 2 है। चौथा यूनिट जो है वो मेरा 9 में बन रहा है, मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस 1 है। सॉरी, और मेरा पांचवा यूनिट जो है वो $10 में बन रहा है, और मेरा हमारी मार्जिनल कॉस्ट 10 है, और प्रोड्यूसर सरप्लस 0 है, तो मेरा टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस है 4 + 3 7 8 9 10। तो $10 का मैंने टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस कमा लिया ऑन सेलिंग 5 यूनिट्स, राइट। बात यह है कि अगर सप्लाई इलास्टिक होगी, इधर देखो बेटा, इधर देखो प्लीज, अभी इधर
अगर सप्लाई इलास्टिक होगी ना, तो सॉरी इन इलास्टिक होगी, क्या होगी, इन इलास्टिक होगी, तो और आप ज्यादा यूनिट जबरदस्ती प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो रिसोर्सेज है नहीं आपके पास, वसाइल है नहीं, और आपने जबरदस्ती प्रोड्यूस करना ही करना है, तो अब आपका रेट ऑफ इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट तेजी से ऊपर जाएगा। मतलब कि आप एक प्रोडक्ट $10 में बेच रहे हैं, चले पहला यूनिट आपने, आपके पास रिसोर्सेज है नहीं, आपने पहला यूनिट जो है, चले फिर भी आप बोलते हो कि जो पहला यूनिट मैंने 6 में बनाया, आपकी प्रोड्यूस सरप्लस $4 है। दूसरा यूनिट अब आप जब बनाओगे ना, जबरदस्ती बनाने की कोशिश करोगे, वेरिएबल फैक्टर्स ऐड करे ऑन द फिक्स फैक्टर, ताकि आउटपुट प्रोड्यूस करो, हालांकि प्रोड्यूस होने के चांसेस बहुत कम है, नहीं करना है। अच्छा, क्या होगा, अब मार्जिनल कॉस्ट जो होगी ना, वो डायरेक्ट पहुंचेगी 6 से लेट सपोज 8 पे, और आपका जो प्रोड्यूसर्स ये प्रोड्यूसर प्लस होगा 10 माइनस 8 इज 2, राइट, $2 होगा। और जो तीसरा यूनिट है ना, तीसरा भी बनाना है, वो भाई सप्लाई इनइलास्टिक है, नहीं बना सकते, कोशिश करो बनाओ, मुझे नहीं पता, बस वर्कर्स को ओवर टाइम बिठाओ, मशीनें लेकर आके भले फिट कर दो, यहाँ पे जगह ही नहीं है सर, कहां से फिट करे, आई डोंट केयर, बनाओ सर, बनेगा नहीं, आई डोंट केयर, बनाओ सर। आप ये तो देखें कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी तीसरे यूनिट की, तीसरे यूनिट को बनाने की मार्जिनल कॉस्ट है, एक मार्जिनल कॉस्ट पहले $2 से राइज हो रही थी शायद 6 से 8 हुई, अब मार्जिनल कॉस्ट तीसरे यूनिट को बनाने की 4 से राइज हो रही है, 8 + 4 12। आपके ख्याल में एक ऐसा यूनिट जिसकी मार्जिनल कॉस्ट ही $12 हो, उसको बनाने की कॉस्ट ही $12 हो, और उसको मैं बेचूं 10 में, फायदा है? ये तो नेगेटिव प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया ना, ये तो -2 का प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। अगर मैं तीसरा यूनिट बना भी दूं फरहान, तो मेरा जो तो मुझे तो डेड वेट लॉस जनरेट हो रहा है 2 का। मैं 4 + 6 मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस है, 4 + 2 मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस है, और 2 - 4 मैं वापस 4 पे आ गया। अब सोचो, खुद देखो, तो ये तो मुझे करना ही नहीं चाहिए। चलो अगर मैं बोलूं कि मैं नहीं करता ये, लेट्स सपोज इफ आई डोंट एंड अप डूइंग दैट, तो अगर एंड इफ आई ओनली एंड अप लेट्स से प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स, और लेट्स से आई एंड अप प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स, एंड चलो मैं बोलूं कि थर्ड यूनिट पे भी मेरी मार्जिनल कॉस्ट, लेट्स अज्यूम कि नहीं इतने तेजी से नहीं इंक्रीज हुई होगी मार्जिनल कॉस्ट, और मैं मे बी 10 पे आ गया हूंगा, बट स्टिल कितने यूनिट्स मैंने बनाए जोया, मैंने यहाँ पे 3 यूनिट्स बनाए, और मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो 6 है। अगर सप्लाई इलास्टिक थी सारा, अगर सप्लाई इलास्टिक थी तो मैं 5 यूनिट्स बना रहा था, और मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस $10 था। अगर सप्लाई इन इलास्टिक है फरहान, तो मैं कितने बना रहा हूं, 3 बना रहा हूं, और मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस 6 है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना कि फर्म्स के लिए क्यों जरूरी है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सिग्निफिकेंस क्या है, राइट? तो उस केस में आप बोलेंगे कि देखिए फर्म्स को बहुत जरूरी होता है कि सप्लाई को इलास्टिक बनाया जाए। देखिए ये मत सोचें कि अगर सप्लाई इलास्टिक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं जासिया के सप्लाई जो है वो लेट्स से इन इलास्टिक है, एस इज इन इलास्टिक, तो ये इन इलास्टिक सप्लाई कभी भी इलास्टिक बन ही नहीं सकती, ये मत सोचें, बन सकती है इन द लॉन्ग रन, हो जाएगी बट यू नीड टू कम अप विद द राइट फैक्टर्स टू मेक इट इलास्टिक, राइट? समझ आ रही है बात? मे बी एंड अप हायरिंग मोर रिसोर्सेज, एंड दैट इज लेट्स से कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आप मशीनरी इक्विपमेंट हायर करें, इनहैंस योर कैपेसिटी, मोर बफर स्टॉक रखें, एक वेयर हाउस कैपेसिटी रख लें, स्टोरेज कैपेसिटी रख लें, सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी। सप्लाई इलास्टिक बनाने की कोशिश करें ताकि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो, बढ़े। जितनी ज्यादा सप्लाई इलास्टिक होगी उतना साइज ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस बड़ा होगा, साइज ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस बड़ा होगा, और यही बात मैंने यहां लिखी थी, लेकिन अब मैंने इसको मैथमेटिकली भी समझा दिया। समझ में आ रही है बात? जितनी ज्यादा सप्लाई इलास्टिक होगी उतना ज्यादा प्रोड्यूसर सरप्लस हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें हम 2-3 चीजें लिखेंगे। सबसे पहली चीज तो हम लिखेंगे सारा क्या, हम लिखेंगे द मोर इलास्टिक द सप्लाई द ग्रेटर वुड बी द इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू एंड प्रोड्यूसर surplus. How can you increase producer surplus? You can increase producer surplus by how can you make your supply elastic? कैसे बनाए सर इलास्टिक सप्लाई? सप्लाई इन इलास्टिक है, इसको इलास्टिक कैसे बनाएं? तो one of the ways to actually
one of the ways to बस मैं I'm just going to be ending it. I just want to end this. अगली क्लास से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, इनकम इलास्टिक डिमांड. वन ऑफ द वेज टू एक्चुअली मेक योर सप्लाई इलास्टिक इज टू शॉर्टनिंग द लेंथ ऑफ प्रोडक्शन लैग. शॉर्टनिंग द लेंथ ऑफ प्रोडक्शन, आई नीड 5 minutes. शॉर्टनिंग द लेंथ ऑफ प्रोडक्शन लैग का मतलब होता है कि आप बेटर क्वालिटी अपडेटेड मशीनरी यूज करें, स्किल्ड वर्कर्स हायर करें, तो प्रोडक्शन में लैग्स नहीं आएंगे. Lag is an important term that you need to do. Invest in research and development, division of labor specialization की तरफ जाएं. ये सारी चीजें क्या करेंगी? ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपकी सप्लाई को इलास्टिक बना देंगी. Number 2, increasing the level of stocks. Increasing the level of stocks. The more stocks you have, the more warehouse capacity you have, the more buffer stock you keep, the more elastic will be your supply. ठीक है? Also work on producing non-perishable goods. ठीक है ना? और गुड्स को नॉन पेरिशेबल बनाए, शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर दें प्रोडक्ट की. अच्छी पैकेजिंग रखें. अच्छी पैकेजिंग रखेंगे तो आपके गुड्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, आप ज्यादा क्वांटिटी में बना के उनको स्टोर कर सकेंगे. इन्वेस्ट इन अ न्यू फैक्ट्री और ऑफिस स्पेस टू इंक्रीज स्पेयर कैपेसिटी. You invest in your fleet of vehicles or machinery, and again the point is that this can't happen in the short run, by the way. Again, one of the most important things is finding ways to increase the substitutability of factors of production, which means, Salah, that you try to make your factors of production mobile, right? Because not only mobile, but also they can easily be reallocated to various other uses, right? So, for example, if you're producing good A, if you were producing good A and now you want to increase the production of good B, so let's say your factors of production are easily substitutable and they can easily be reallocated from good A to good B. So good B की supply क्या हो जाएगी? Elastic हो जाएगी. A business would train workers to produce multiple goods or offer multiple services or work on improving the mobility of its workers. Multi-purpose होना चाहिए आपके. Although this goes against the concept of specialization, but again, evaluation में लिख सकते हो. This goes against the concept of specialization. You're asking us to be multitasked. This goes against specialization. But again, from elasticity perspective, this will make your product more elastic.